Good morning, students. Hope now you understand the material requirement planning architecture. What exactly material requirement planning is? It is a composite of master production schedule, bill of material, inventory status file. And after that, you come to know about whether you want to internally manufacture the product, whether you want to purchase from the outside. Clear? Now, the objective of material requirement planning. There are several objectives of material requirement planning, like reduction in inventory cost. By having a proper planning, it will help you to reduce the inventory cost by providing a right material at the right time to meet your master production schedule. It helps to meeting a delivery schedule also by minimizing the delay in material procurement, production decision making, etc. Improved performance. It had to improve the performance also by streaming inline the production operation and minimizing the unplanned interruption. MRPA focus on having all component available at right place, at the right quantity, at the right time. Now, there are various factors after MRP. There are various factors that help us to determine the optimum level of inventory, like the rate of inventory turnover. कितना रेट है इन्वेंट्री टर्नओवर, कितनी जल्दी जल्दी इन्वेंट्री आपकी कैश में कन्वर्ट हो रही है, यू आर कन्वर्टिंग इनटू सेल. Accordingly, you will determine the optimum level of inventory. The types of product. आपका प्रोडक्ट अगर पेरिशेबल है तो आप जो इन्वेंट्री रखेंगे वो कम रखेंगे. अगर आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट जल्दी नहीं होता है तो आप उसकी इन्वेंट्री बढ़ा के रख सकते हैं. ठीक है. देन द मार्केट स्ट्रक्चर, कि आपका मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर इट इज़ अ परफेक्ट मार्केट, वेदर इट इज़ नॉट. क्योंकि अगर परफेक्ट मार्केट है तो आप अपनी इन्वेंट्री कम रखेंगे क्योंकि एवरीवेयर दे गेट अ सेम रेट. बट इम्परफेक्शन अगर मार्केट में है तो यू कैन मेंटेन इन्वेंट्री लेवल हाई to take advantage of that imperfection. Then economy of production run, कि आपके प्रोडक्शन करने में कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको करना है ताकि आपको इकोनॉमी अचीव हो सके, इकोनॉमी ऑफ स्केल आप अचीव कर सके. ठीक है. अकॉर्डिंगली आपका लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिसाइड होता है. देन द कॉस्ट, हाउ मच कॉस्ट इज इंकर्ड टू मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री लेवल. फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग नीड अ फाइनेंस रिसोर्स. देन इन्वेंट्री पॉलिसी एंड एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट. अगर आपका एटीट्यूड है मैनेजमेंट का कि मेरे यहाँ जो कस्टमर आए उसको हमेशा वो हर चीज़ मिले जो वो देखना चाहता है, तो आपका इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा, वो हाई होगा. बट अगर आपका एटीट्यूड है मैनेजमेंट का कि ऑन डिमांड हम मंगा देंगे, वी हैव अ कैटलॉग्स एंड ऑल, तो आप इन्वेंट्री लेवल को कम मेंटेन करते हैं. तो इट टोटली डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड एंड इन्वेंट्री पॉलिसी ऑफ योर मैनेजमेंट ऑल्सो. क्लियर? देन now the various types of inventories. As you see, we have a various types of stock level. This is your maximum stock level. Maximum stock level means the economic order quantity that you have calculated. Then we have reorder limit. Reorder limit means this is the indication कि कब हमें order कर देना है ताकि आपकी inventory minimum पहुंचने से पहले, जैसे minimum पहुंचेगी immediately आपको supply मिल जाए और वापस आप maximum में जाएं. ठीक है. तो दिस इज योर मिनिमम लेवल जो हमेशा आपको मेंटेन करना ही करना है. क्लियर? तो ये आपको मेंटेन करना है. तो दीज आर द स्टॉक लेवल, लाइक मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल you can calculate with the help of reorder level. Whatever reorder level you have, minus average usage into average lead time, means कितना टाइम लगेगा उसको दोबारा लाने में. 1 day, 2 days, how much time. Then maximum level you will decide. Then average stock level. Danger level is the level कि इससे नीचे कभी भी आपकी इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज स्टॉपेज होने का प्रोडक्शन यूनिट को या फिर आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होने का खतरा बढ़ता है. क्लियर? नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम. Basically we have 3 types of classification of inventory system. One is lot size, reorder point policy.
Inventory level fall to reorder point. Order is placed as per the EOQ. इसमें क्या है, लॉट साइज रीऑर्डर पॉइंट पॉलिसी में कि जैसी इन्वेंट्री आपका रीऑर्डर पॉइंट में पहुंच रही है, आप इमीडिएटली अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और वापस आप जो है जो ऑर्डर जो होगा आपका जो होगा वो आपका ऑर्डर साइज जो होगा वो कांस्टेंट होगा EOQ लेवल में. मीन्स अगर 200 यूनिट है EOQ तो एवरी टाइम जैसे आपका रीऑर्डर पॉइंट पहुंचा आपने 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दिया. ठीक है, तो इट मीन्स ऑर्डर साइज इज कांस्टेंट ओवर हियर. देन सेकेंड इज fixed order internal schedule policy. In fixed order internal scheduling policy, maximum stock level is predetermined. ये भी आपका EOQ से आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी होगी. एंड एट फिक्स टाइम इंटरवल इन्वेंट्री लेवल आर डिटरमाइंड. एक फिक्स टाइम इंटरवल आपने रखा, मीन्स आपने कहा कि एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और आफ्टर एवरी 15th आप जो है इन्वेंट्रीज को चेक करेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इज प्लेस्ड टू मेक अ स्टॉक लेवल. आपका जितना स्टॉक उस समय तक कम है आपने उतना जो है मैक्सिमम ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे. मीन्स तो ऑर्डर साइज में वेरी, आपका जो ऑर्डर का साइज है यहाँ वेरी करेगा. ठीक है, बट द टाइम बिटवीन टू ऑर्डर इज कीप कॉन्स्टेंट. मीन्स आपने अगर 15 डेज रखा तो हर 15 डेज में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बट 15 डेज में जो क्वान्टिटी होगी, ठीक है, वो वेरी हो सकती है. कि हो सकता है कि आपकी एक बार क्वांटिटी आपने 10 यूनिट्स मंगाई, एक बार आपने 20 यूनिट्स मंगाई, मगर मैक्सिमम लेवल पूरा करने के लिए जितनी इन्वेंट्री आपको चाहिए आप उतनी ऑर्डर करेंगे. तो पहले वाले में क्या था, आपका टाइम, आपका ऑर्डर की क्वांटिटी फिक्स थी. दूसरे वाले में क्या है, आपका टाइम फिक्स है कि कब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे. क्लियर. देन नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शनल रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी. Optional replenishment policy is also known as a SS policy. Big S means maximum quantity, small s means minimum quantity. अब यहाँ पर क्या होता है, इन्वेंट्री लेवल पीरियडिकली आप रिव्यू कर रहे हैं. इफ इन्वेंट्री इज लेस देन स्मॉल एस, मिनिमम से कम है तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे. एंड इफ इन्वेंट्री लेवल इज मोर देन योर स्मॉल या मिनिमम लेवल इन्वेंट्री, देन नो ऑर्डर विल बी प्लेस्ड. अगर इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा है आपके मिनिमम लेवल से तो आप कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे. अगर आपके मिनिमम लेवल से कम है इन्वेंट्री, देन यू विल प्लेस द ऑर्डर. तो डिसीजन वेरिएबल यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी एंड द टाइम पीरियड. सो एंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेंट्री. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम आर 3 टाइप. एक में आपने अपने ऑर्डर साइज को कांस्टेंट रखा है, दूसरे में आपने जो है टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखा है, और तीसरे में आपकी जो है यहाँ पर सिर्फ डिसीजन वेरिएबल है, मिनिमम, मैक्सिमम और टाइम, जो आप पीरियडिकली रिव्यू कर रहे हैं. क्लियर. तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेंट्री प्लानिंग. वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस इज इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं. That is not in your course, but you should know, like ABC technique is there, कि आप हर इन्वेंट्री को प्रॉपरली टाइम नहीं दे सकते. ठीक है, तो आप क्लासीफाई करते हो इन्वेंट्री को कि ए आइटम ऐसे आइटम्स होंगे जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट का कंसिडरेशन होगा. इन्वेंट्री भले ही कम हो, बट उसमें जो अमाउंट है, जो आपका वॉल्यूम है वो कम है, बट जो अमाउंट आपकी जो उसमें आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं दैट इज़ वेरी हाई. तो आप यहाँ पर बहुत सोच समझ के उसकी डिटेल रिजिड प्लानिंग करते हैं. देन बी आइटम जो मिडिल मैनेजमेंट आपका प्लान कर सकता है. सी आइटम के में वो, सी कैटेगरी में वो आइटम्स आप रखते हैं जो बल्क में आप प्रोक्योर करते हैं, जिसमें अमाउंट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है बट क्वान्टिटी इज़ वेरी हाई. ठीक है. देन वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन लाइक VED, वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल में आप क्लासीफाई कर सकते हैं इन्वेंट्री को. देन यू हैव FSN मीन फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम में आप क्लासीफाई कर रहे हैं इन्वेंट्री को. तो दे आर n number of inventory control techniques that we can use to classify inventory, and accordingly you do inventory control management. So this is all about your inventory management or inventory planning system. In next class we will going to cover a maintenance management. If you have any doubt you can contact me, students. Okay, thank you for the day.